bond is fragmentation pattern of alkynes. Now, in this, we are going to see the different types of fragments formed in mass spectroscopy. First of all, we have to consider that in these compounds, there is carbon-carbon. Yes, sir. Arya. Carbon-carbon triple bonds. Okay, carbon-carbon triple bond is there. So, carbon-carbon triple bond. Out of this triple bond, one is sigma bond and two are pi bonds. As you know that pi bond ejects electron easily. It requires less energy as compared to sigma bond. Therefore, it requires less energy to be absorbed for ejecting electron from the molecule. So इसके लिए यहाँ पर हमको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए M+1 पीक बनाने, M+ मॉलिक्यूलर आयन पीक बनाने के लिए, तो वो जो है यहाँ पर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू अल्कीन्स एज वेल एज अल्केन्स. चलिए अगले पॉइंट पर आ जाइए. अब अल्कीन्स में क्या है, यहाँ पर एक बात हमको यहाँ पर याद रखनी की है कि अल्कीन्स के अंदर अगर यहाँ पर टर्मिनल कार्बन के ऊपर एक साइड से अगर हाइड्रोजन इज अटैच्ड, इफ वन साइड इज हैविंग hydrogen and here suppose it is alkyl group, so the most probability is that it will eject out one hydrogen radical, so it will give out hydrogen radical, so subtract 1 from the molecular ion peak. So M-1 peak is observed in such compounds where terminal alkyne carbon has hydrogen, means last वाले कार्बन के ऊपर कार्बाइन अल्काइन वाले कार्बन पर यहाँ पर अगर हाइड्रोजन अटैच है यानी टर्मिनल कार्बन है अल्काइन का, तो उस वक्त वहां से H रेडिकल निकलेगा. इसलिए इनके अंदर एक पीक जो है तो आपको मिलेगा अलोंग वेरी क्लोज टू मॉलिक्यूलर आयन पीक बाय अ डिस्टेंस ऑफ -1. सो यू विल गेट ए पीक एट M-1 peak you are getting here because of elimination of hydrogen radical. चलिए अगले पॉइंट पर आ जाइए. अगले पॉइंट के ऊपर आ जाइए. इसके अंदर जो है यहाँ पर देखिए एक है, तो अगर यहाँ पर जैसे हमने इससे पहले अल्कीन्स में देखा है ना, अल्कीन्स में क्या था, एलिलिक कार्बन जो है एलिलिक बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा था. सिमिलर टाइप ऑफ क्लीवेज इज पॉसिबल हियर, दिस बॉन्ड विल क्लीव, है ना. यहाँ पर भी उसी तरह से एलिलिक टाइप का जो कार्बन है बॉन्ड है वो यहाँ पर इलिमिनेट होता है. तो इस तरह से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीसीज दैट इज कॉल्ड एज प्रोपागैरिल कटायन. और इसकी जो पीक है, इफ यू फाइंड आउट हियर, इट विल अपीयर एट M/Z 39. You will get a peak at 39. And now see here, the peak in alkane was observed at 43. The peak is observed in alkene is at 41. Now we are observing a peak at 39. Is observed at 39. Okay. तो यहाँ पर आपको 39. It is 43. It is in alkane. You were observing a peak at 43. In alkenes at 41, while in alkynes you are getting here peak at 39. So that is to be kept in mind. So it will give an idea about this, whether it is alkane, alkene or alkyne. Okay, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. नेक्स्ट पॉइंट है, ये एग्जाम्पल है. यहाँ पर 2 पॉइंट हमको याद रखने हैं. एक तो हमारे क्या करना है कि टर्मिनल कार्बन, सो ये 1 पेंटाइन इज देयर. सो इन 1 पेंटाइन here this cleavage takes place between carbon and hydrogen. So there will be formation of a species cation which will appear at M-1. So here molecular ion peak is observed at 68. So 68 minus 1 means 67. So you are getting here a peak at 67. So it indicates that it is a M-1 peak. So it is a M-1 peak.
it is m-1 peak. Second point is to be considered that it is here it is having 100% intensity. So such type of peaks are called as base peaks. So here m minus peak is also is a base peak. So it is a base peak. It is a base peak. Okay. Now other fragments are also there. You are getting here other peaks also. You are getting other peaks also. Just I have seen the shown you in the previous slide that this type of allylic cleavage will take place here also. जैसे alkene में था उसी तरह से. So this cleavage will take place and positive character will be is present on the fragment which is containing carbon-carbon triple bond. So the peak is observed at 39. So you are getting here peak at 39 for CH2 positive single CH2 positive single bond C triple bond CH. For this group you are getting a peak at 39. So you are getting a peak at 39. तो ये इस तरह से आपको याद रखना है कि ये इस तरह से पीक मिलेगा. ठीक है. देयर इज एलिमिनेशन ऑफ दिस वन. नाउ अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या हो गया, 2 पेंटाइन है. इन 2 पेंटाइन हियर एलिलिक बॉन्ड विल क्लीवेज. तो अब ये जब होगा तो इसका मॉलिक्यूलर आयन पीक आपका है 68 के ऊपर है. ठीक है. ये 68 is the molecular ion peak, M plus ion. Now here you are also getting here one peak, M minus 1, because of cleavage of one carbon hydrogen bond. So that M minus 1 peak is observed here. Here M minus 1 peak. But this peak at 53, this 53, it is more prominent because here it is forming here CH2 positive single bond C triple bond C single bond CH3. So there is formation of this species, which is this fragment. It will appear at 53. तो ये यहाँ पर 53 के ऊपर होगा. Along with there is formation of hydrogen, here CH3 radical. Okay, so since here it is having positive charge and along with conjugation is there, therefore it will stabilize. So its peak intensity is near about 80%. So it is 80%. Okay. Now the other fragments will also be formed there. एट 40 देखिए यहाँ पर 49 पे है, 41 पे है, 39 के ऊपर है, और अलॉन्ग विथ यहाँ पर देखिए 29 के ऊपर है, 29 के ऊपर है, 29 के ऊपर. व्हाई वी आर गेटिंग ए पीक एट 29? बिकॉज CH3 CH2 here C triple bond C CH3. So due to cleavage of this bond you are getting here peak of here CH3 CH2 positive at 29. तो ये अगर यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीव होता है एसिटिलिनिक कार्बन का और CH2 कार्बन का, तो उस वक्त वहां पे इथिल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, तो यू विल गेट ए पीक एट 29. तो इस तरह से तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक है. अब आ जाइए अगले पॉइंट के ऊपर. अब है यहाँ पर बेंजीन के ऊपर. ठीक है. नाउ बेंजीन का जो रहेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया कि बेंजीन का जो पीक रहेगा दैट विल बी इंटेंस पीक. सो मॉलिक्यूलर आयन पीक फॉर aromatic compounds will be intense because that carbocation radical cation will be more stable because it is delocalizing the electrons to and forming the number of resonating structures. So number of resonating structures are more, means it is more stable. Because of that more stability, the intensity of the molecular ion peak is very high as compared to alkanes. ठीक है. ये इस तरह से यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है. आप सपोज करना है कि यहाँ पर हमारे पास अगर यहाँ पर आपके पास है, देखिए साइड चेन अगर अटैच है तो ये क्लीवेज भी होता है.
तो यहाँ पे देयर इज लॉस ऑफ मिथिल रेडिकल, सो दिस ग्रुप विल बी एक्वायरिंग हेयर, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर आपको 77 के ऊपर पीक मिलेगा, तो साइड चेन यहाँ से एलिमिनेट हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर मिथिल ग्रुप इज अटैच्ड, ओके, और एनी ग्रुप विच इज अटैच्ड वेयर CH2 इज देयर, ठीक है, एटलीस्ट देयर शुड बी ए CH2, है ना, देयर शुड बी CH2 ग्रुप, here CH2 and here R is there. So this bond between alpha beta carbon will break, और ये जो है यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगा आपका पॉजिटिव, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीलियम आयन, CH2 पॉजिटिव। ये हमने इससे पहले तो देखा है जनरल फ्रैगमेंटेशन के अंदर, तो ये यहाँ पर होगा, और ये रीअरेंज होके यहाँ पे इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रोपोलियम आयन। सो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर वहां पर आपका CH3 ग्रुप अटैच है तो वो आपको है तो एलिमिनेट करना है। फिर उसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि अगर ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर CH2 ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है अटैच टू द बेंजीन रिंग फिनिल ग्रुप, तो उस कंडीशन में यहाँ पर बेंजीलियम आयन विल बी फॉर्म, दैट बेंजीलियम आयन इज कन्वर्टेड इनटू रीअरेंज्ड इनटू ट्रोपोलियम आयन। तो ये इस तरह से यहाँ पर हो जाता है ट्रोपोलियम आयन में, ठीक है। ये जो ध्यान खास तौर से ये बात ध्यान में रखना है कि अब जैसे अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है यहाँ पर, C6H5 है सपोज, ठीक है, C6H5 है, यहाँ पर है CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है हमारा, द रिक्वायरमेंट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट इज CH2 ग्रुप, सो हियर CH2 ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट, so there will be no formation of troponium ion, no formation of troponium ion, ठीक है, ट्रोपोलियम आयन, so troponium ion will not be formed here in this case, ठीक है, because here CH is there, minimum requirement is CH2 group, है ना। वहां पे चौथा जो रहेगा बॉन्ड वो आइदर हाइड्रोजन भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है, ठीक है। अगले पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है। इफ कार्बन चेन इज सफिशिएंट, इज लार्ज and sufficient, then it will undergo suppose here it is alpha carbon, it is beta carbon, and here it is gamma carbon. Now it is having hydrogen, so this hydrogen it will be migrating on the benzene ring, okay. So here rearrangement will take place, so Mac-Lafferty rearrangement will take place, and here elimination of this ethylene will take place. So you will be getting here this type of species, CH2, here CH2, here hydrogen, and hydrogen, already one hydrogen was there, so here it is having positive character, okay. So therefore you will get a peak at 92 also, you are getting a peak at 92 also, okay. So 92 के ऊपर rearrangement, Mac-Lafferty rearrangement is taking place, Mac-Lafferty. So the condition is already known to you, is that when gamma hydrogen is present, then it will undergo Mac-Lafferty rearrangement. So I will not go into the detailed mechanism now, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। Substitution pattern for aromatic are able to determine by mass with exceptional group that have either ion chemistry, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका हो गया क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर है xylene का,
ठीक है। जाइलिन के ऊपर क्या है, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर आयन पीक बनेगा, इससे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने से एक मॉलिक्यूलर आयन पीक बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन पीक, सो इट इज मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये है m/z, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट है 106, 106, सो यू विल गेट ए पीक एट m/z at 106. Okay, this carbon carbon bond is cleaved now, then you will be getting this species is formed, so you will be getting a peak at 91. You are getting a peak at 91. This will be appearing at m/z. It rearrangement takes place, and after rearrangement it is converted into troponium ion. So it is converted into troponium ion. ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक ये कंपाउंड बनता है। तो you are getting a troponium ion. तो troponium ion is more stable, therefore it is a base peak. It is a base peak at 91, so it is a more stable. So it will be positive charge is delocalized over the troponium ion, so that is why it is more stable. Now here it is n-butyl benzene. It is n-butyl benzene. Okay, so it is undergoing Mac-Lafferty rearrangement. So it will first form. It is form molecular ion peak. So it will appear at 134. It is appearing at 134. Now, once it is formed, then it will undergo different fragmentations. तो यहाँ पर 2-3 तरह के हो जाएंगे। तो हमको मेन फोकस कौन से इस पे करना है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोलियम आयन 1, नंबर 1 here it is A suppose, so after cleavage it will be forming a troponium ion. So there is formation of troponium ion, so you will get a peak at this 91. So peak will appear at 91 because of the troponium ion. Because of troponium ion, so you are getting a peak at 91. So you are getting a peak at 91. Now at the same time the cleavage is taking place and elimination is taking place according to the Mac-Lafferty rearrangement. So there is loss of propylene. See here it is CH3, here C, double bond C, here H. Okay, sorry, it is CH, so it is CH2. So it is here eliminated in the form of propylene. This part is eliminated, this part is eliminated here. This part is eliminated in the form of alkene. So there is loss of propylene. So propylene, it contains 3 carbon and 6 hydrogen. So it is 42. So subtract 42 from 134, you will get at 92. So you are getting a peak at 92, that is corresponding to m/z 92, corresponding to the Mac-Lafferty rearranged product. Here rearranged fragment. चलिए अगले पॉइंट पर आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट इज alcohols. Alcohol. Now here in our general discussions while fragmentation, we have already discussed that the molecular ion peak of alcohols is very less intense, very less intense, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी इसके तो लो होते हैं, लेकिन टर्शरी का बहुत दफा पर यहाँ पर एब्सेंट भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर आपको तो यहाँ पर क्या करना है, हेटेरो आइटम है आपका। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट कहाँ पर है,
सेकेंड और थर्ड कार्बन के ऊपर आपको वहां पर क्लीवेज करना है, ठीक है, ये आपको यहां पर क्लीवेज करना है. सो द रिमेनिंग ग्रुप will have free radical and oxygen containing group is having a positive charge. So this cation will give a peak at 31. ठीक है, एक बात ये ध्यान में रखना है, यहाँ से बी वाला भी होगा, वो आपको है तो बाद में देखेंगे, लेकिन आपको ए वाला तो आपको कंपल्सरी याद रखना है. दैट इज ए पीक. प्राइमरी अल्कोहल जब भी रहेंगे, सो प्राइमरी अल्कोहल विल गिव ए पीक ऑफ CH2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H. बिकॉज ऑफ दिस यू विल बी गेटिंग हियर ए पीक. ठीक है, सेकेंडरी के अंदर अगर यहाँ पर देखेंगे आप, तो सेकेंडरी में आपको क्या करना है, सेकेंडरी में क्या करना है, यहाँ पर सेकेंडरी में आपको दो ऑप्शन है, ये ए एंड हेयर बी, ए एंड बी. ठीक है, देयर आर टू ऑप्शंस ए एंड बी. तो वेदर ए क्लीवेज विल टेक प्लेस और बी विल टेक प्लेस. सो ए इज गिविंग हेयर एन प्रोपिल रेडिकल. ए वाला क्या मिल रहा है, रेडिकल, और यहाँ पर ये आपको उसके साथ स्पेसिस मिल रही है. यहाँ पर इसका है तो M/Z रहेगा, ये फ्रैगमेंट का रहेगा आपका M/Z 45. तो यू आर गेटिंग ए पीक एट 45. नाउ बी वाले से क्या हो जाएगा आपका, बी वाले से ऑप्शन आपका यहाँ पर है, बी वाले से आपको यहाँ पर याद रखना है कि बी वाले से ये है तो आपका यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरह से, ये OH डबल बॉन्ड ये हो गया आपका, और उसके साथ साथ आपको है तो बन जाएगा CH3 रेडिकल. तो ये भी बनेगा, लेकिन इसका है तो चांसेस कम रहेंगे क्योंकि ये लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू एन प्रोपेल रेडिकल. तो इसलिए हमने पहले बताए थे कि आपको क्या करना है, पहले जो कार्बोकटाइन है उसका है तो यहाँ पर देखना है आपकी स्टेबिलिटी, अगर वो होने के बाद में कटाइन के बाद में आपको फ्री रेडिकल की देखना है. तो फ्री रेडिकल जिसमें स्टेबल फॉर्म हो रहा है तो वो तो प्रोमिनेंट रहेगा. ठीक है, ठीक है. अब आ जाइए इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर आपने क्या किए, यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल के अंदर, टर्शरी के अंदर यहाँ पर A, B और C. So I denote these two as BB because both are CH3 groups, so both are identical. So ABC instead of ABC, I write here A and B. Now, what I mean to say here that this bigger fragment will be eliminated, bigger free radical. It is eliminated in the form of here radical. So it is eliminated as the radical, and the smaller group will be associated with the oxygen atom. So you will get a peak at here 59 M/Z. So आपको याद रखना है कि you are getting in alcohol, primary alcohol में 31 के ऊपर peak मिलना compulsory है. For secondary alcohols you should get peak at 45, that is compulsory. और tertiary alcohol के अंदर आपको the peak should be at 59. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, ये तो पीक आपके हो गए. चलिए अब उसके बाद में क्या हो रहा है कि इसके साथ साथ क्या होगा, आपके कंपाउंड के अंदर यहाँ पर होता है डिहाइड्रेशन भी होता है. डिहाइड्रेशन अल्कोहल के अंदर, तो अगर डिहाइड्रेशन होता है तो आपका वाटर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड. तो -H2O मीन्स एयर हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16. So total हो गया आपका 18. So the loss is of 18. So M-18 you will be getting here M-18 peak here. ठीक है, it will be here M-18. Dehydration is also taking place. तो आपको वो ध्यान में रखना है M-18. ये पीक भी आपको मिलेगा. इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, 1-2 elimination reactions भी होगी इसके अंदर. ठीक है, उसके साथ साथ 1-4 एलिमिनेशन रिएक्शंस हो गए आयनाइजेशन में. तो इस तरह से हो गया आपको M-18, यू आर गेटिंग ए पीक एट M-18 ऑल्सो. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट. मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट के लिए क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे हेटेरोएटम, इसके पास लोन पेयर है ना. तो इसमें से अगर आपका एक निकल गया तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ radical ion. That radical ion, ये अल्फा कार्बन
बीटा कार्बन, ये सॉरी इट इज, हाँ ये एक बीटा गैमा एंड नाउ इट इज डेल्टा, ये H, इट विल बी माइग्रेटिंग। ठीक है, तो आपके अगर यहां से काउंट करेंगे तो ये अल्फा बीटा गैमा डेल्टा है ना, तो इसमें डेल्टा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर डेल्टा तक चले गए। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, इसमें मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। तो अब इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से यहाँ पर आपका जो कंपाउंड है ये जो है तो आपको बनेगा, यहाँ पर दो चीजें एलिमिनेट हो गई, एक तो अल्कीन भी हो गई और एक वाटर भी हो गया। ठीक है, एक तो वाटर भी हो गया और एक अल्कीन हो गया, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक वाटर। ठीक है, तो ये H इधर आ गया तो आपका हो गया यहाँ पर H2O, और इसके साथ साथ ये दोनों निकल गए यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ अल्कीन, तो ये CH2 ये निकल गया। तो अब बचे हुए ग्रुप जो है आपके पास ये रेडिकल आयन रहेगा, सो इट विल बी अपियरिंग एट दिस पॉइंट। सो व्हाट यू हैव टू कंसीडर दैट जिस मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट जब भी होगा, मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट, तो यहां पर आपको क्या करना है, M-28, ठीक है, -18, इतना आपको माइनस करना है, मीन्स ये कितना हो गया 46, M-46, M-46। ओके, सो M-46 यू आर, देखिए ध्यान में रखिए, वहां पर आपको मैक-लेफर्टी में बताए थे अल्कीन वगैरह में कि देयर इज एलिमिनेशन ऑफ ओनली इथिलीन, है ना, यहाँ पर वाटर भी एलिमिनेट हो रहा है, तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इथिलीन और वाटर ये दोनों की वजह से, तो आपको यहाँ पर पीक जो मिलेगा वो माइनस पर मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद में। ठीक है, M-, यहाँ पर एक बात ध्यान रहना है, ये पॉइंट आपके सामने है, देखिए लॉस ऑफ H इज नॉट फेवर्ड फॉर अल्केनॉल्स, अल्केनॉल्स के ऊपर यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल इज नॉट फेवर्ड, ये फेवर में ये है तो चांसेस नहीं है इसके। ठीक है, चांसेस कम है, ये नहीं है बोलिए या नहीं, कम है या नहीं है बोलिए। ठीक है, अगले पॉइंट पर आ जाइए। अब अगला पॉइंट क्या है, साइक्लिक अल्कोहल जो रहेंगे, साइक्लिक अल्कोहल्स रहेंगे तो उनका जो क्लीवेज होगा उसी तरह से होगा। आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ये आप तो क्या करना है, ये जो अल्फा बीटा कार्बन के बीच वाला ये बॉन्ड ब्रेक करना है जैसे हमने पहले बताए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर रीअरेंजमेंट करना है, तो बाद में फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो आपको है तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होने से आपको यहाँ पर फिर से है तो यहाँ पर बन जाएगा 57 के ऊपर आपको पीक मिलेगा, यू विल गेट ए पीक एट। सो यार ये हाइड्रोजन यहाँ पर है तो इधर से ले लेगा और ये जो है तो बॉन्ड इधर रख के ये साइक्लिक यहाँ पर, ठीक है, तो ये रेडिकल यहाँ पर हाइड्रोजन रेडिकल उधर शिफ्ट हो गया, यहाँ से जो है ना ये जो है यहाँ पर हाइड्रोजन रेडिकल इधर शिफ्ट हो गया, तो ये दोनों के बीच में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब इसके पास रेडिकल बन गया और ऊपर वाले के ऊपर ये है, ठीक है। फिर ये इधर आ गया, ये इधर से एक रेडिकल इधर आ गया, तो ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और इट इज एलिमिनेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे रेडिकल के फॉर्म में एलिमिनेट हो गया। और ये बाकी का रिमेनिंग जो है इसका कैलकुलेट करके देखिए, ये आ जाएगा आपका M/Z एट 57 के ऊपर आपको पीक मिलेगा, ठीक है। अब देखिए डिहाइड्रेशन भी होगा, साइक्लिक कंपाउंड का डिहाइड्रेशन जैसे होता है, अल्कोहल का बताया हमने -18 M-18 पीक मिलेगा आपको, तो यहाँ पर भी यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से आपका है तो H निकल गया, या यहाँ से H निकल गया, यहाँ से ये H, या फिर यहाँ से H निकल गया, तो इस तरह से ये आपको बॉन्ड बन गए, तो ये इस तरह से यहाँ पर ये बन गया आपका स्पेसिस, और यहाँ पर आपका वाटर एलिमिनेट हो गया। तो इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग बाइसाइक्लिक कंपाउंड, बाइसाइक्लिक रेडिकल आयन बनेगा, बाइसाइक्लिक रेडिकल आयन, ठीक है। अब आ जाइए, ये हमारा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है ये कंपाउंड का नाम है हमारा, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका 5 वाला जो कंपाउंड हो गया आपका 5 कार्बन वाला कंपाउंड, ये हो गया आपका पेंटेनॉल, ये हो गया आपका पेंटेनॉल। नाउ पेंटेनॉल जो है आपका ये हो गया,
ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल, इट इज ए प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या है यहाँ पर, ये आपको अभी बताए, अल्फा, बीटा, gamma, delta, so it is having delta H is present here, delta hydrogen is present there, so it undergo McLafferty rearrangement, it will undergo McLafferty rearrangement। यहाँ पे क्या हो गया, -H2 भी होगा, माइनस इथिलीन भी होगा, इथिलीन की बजाय ये बोलिए आप यहाँ पर प्रोपिलीन, इथिलीन होगा, सॉरी इथिलीन ही होगा, सो -CH2 तो ये आपको यहाँ पर हो जाएगा। ये एक चीज हो गई। यहाँ पर आपको बताया गया है ऑलरेडी कि अल्फा बीटा के बीच का बॉन्ड ब्रेक होके आपको यहाँ पर बनना है CH2 पॉजिटिव, CH2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, तो यहाँ से ये इससे पहले वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये अल्फा बीटा वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना है, तो वो एक ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो इस तरह से अलग अलग चांसेस है। तो यहाँ पर देखिए आपका इसका मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक इज ऑब्जर्व्ड एट 88, इसमें से -H2O करे तो यू विल गेट ए पीक एट 70 के ऊपर एक पीक मिल गया। यहाँ पे मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट के अंदर आपने इसमें से माइनस करना है 46, सो 88 माइनस 46, सो इट इज गिविंग हियर 42, सो यू आर गेटिंग हियर पीक एट 42। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये 31 वाला तो आपके पास है, यहाँ पर ये 31 वाला पीक है, ये ऑलरेडी नोन टू यू फॉर दिस वन कंपाउंड। सो दीज आर द प्रोमिनेंट पीक्स इन प्राइमरी अल्कोहल। Now here it is the secondary alcohol, secondary alcohol as secondary alcohol। ठीक है, secondary alcohol के अंदर आप यहाँ पर देखिए क्या है, ये इसका जो इंटेंसिटी है ये 88 के ऊपर ही है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी यू सी हियर, इंटेंसिटी इज लेस हियर। नाउ ये यहाँ पर आपको H2O है, ये जो है आपका OH, ये बॉन्ड आपको बताया गया है कि ब्रेक होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ radical here, 2-pentanol is their compound, so there will be formation of C double bond O single bond H positive here, and here CH3, and here H. So this compound will be formed, and that is why its mass is 45। ठीक है, so the peak will appear at 45, the peak is appearing at M/Z 45। तो इस तरह से ये 45 के ऊपर आपको एक पीक मिलेगा, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए इसके अंदर ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, हाइड्रोजन इज देयर, सो मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट इज आल्सो टेकिंग प्लेस, so मैकलफर्टी इज आल्सो टेकिंग प्लेस, ओके। तो मैकलफर्टी आल्सो टेकिंग प्लेस, so -H2O minus ethylene, so -46, so 88 minus 46, so you will get here peak at 42, so you are getting a peak at 42 here also, here 42 के ऊपर भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से तो आप अलग अलग पीक्स को है तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए यहाँ से अगर आपने तो अलग अलग क्लीवेज भी है यहाँ पर, अगर आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया है, कौन सा है, यहाँ से तो आपने क्लीव करा, यहाँ से अगर क्लीव करा तो ये जो ग्रुप आएगा उसका एक पीक मिलेगा। तो इस तरह से अगर अलग अलग फ्रैगमेंट होते रहेंगे तो उसके अलग अलग पीक्स आपको मिलेंगे, जो जो है वहां पर देखिए। ठीक है, चलिए अब आ जाइए टर्शरी अल्कोहल के ऊपर। टर्शरी अल्कोहल के अंदर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्या क्या याद रखना है, तो यहाँ पर याद रखना है कि देखिए आपको है तो ए बी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, हमने अभी बताया आपको टर्शरी के अंदर ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये ए है सपोज, तो ए क्लिप होने के बाद में यू विल गेट ए पीक एट -15, तो 102 इज द मॉलिक्यूलर वेट, सो 102 minus 15, so you will get here 87, so this is forming here peak there, so it is because of OH and here positive। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और ये हो गया आपका CH3, ठीक है। और ये हो गया आपका ये बिगर ग्रुप, ये हो गया आपका CH3। इसका मिलेगा आपको 59 के ऊपर। तो इस तरह से ये है, तो आपका फ्रैगमेंट जो है इसका 59, यू विल गेट ए पीक एट 59, you are getting a peak at 59. So in this way you are getting here different peaks. Now here cyclopentanol, ठीक है। साइक्लोपेंटेनॉल ये साइक्लिक अल्कोहल है, इसके लिए भी हमको वही रूल ये करना है, आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में यहाँ से हाइड्रोजन रहेगा, ये माइग्रेट करके इधर शिफ्ट कर देना है। फिर उसके बाद में है तो आपको यहाँ से जो रेडिकल फॉर्म होगा, ये रेडिकल का इधर से एक और इधर से एक इलेक्ट्रॉन लेके ये बॉन्ड एलिमिनेट करना है। सो देयर इज एलिमिनेशन ऑफ इथिल रेडिकल आपका एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल गेट ए पीक एट हियर। तो इथिल का है आपका 29, सो -29 करना है। सो 86 - 29 you will get a peak at 57. So you are getting a peak at 57. So subtract 29, you will get this. चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, फ्रैगमेंटेशन पैटर्न्स ऑफ फेनॉल। फ्रैगमेंटेशन पैटर्न्स ऑफ फेनॉल। नाउ इन फेनॉल्स, यहाँ पर फेनॉल के अंदर क्या है, अब एक खास बात ध्यान रखना है। अल्कोहल में हमने बताए थे आपको, क्या बताए थे कि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन रेडिकल जो है वो फेवर नहीं करेगा, है ना, इट इज नॉट फेवर्ड। एलिमिनेशन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल इज नॉट फेवर इन अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फेवर करेगा, बिकॉज जो उसके ऊपर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव रहेगा दैट विल बी डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर एक ही हो जाएगा। और सेकेंड, इट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दो चीजें हो गई, आपको याद रखना है अल्कोहल से क्या क्या डिफरेंस हो गया। यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल नंबर 1, दूसरा है तो रीअरेंजमेंट। देखिए रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है, इन दिस रीअरेंजमेंट दिस हाइड्रोजन इज शिफ्टेड टू द ऑर्थो कार्बन। सो if you count, there is no loss of any element or atom. There is no loss of any atom. Therefore, it is rearranged to form this one, and you will get the peak at same molecular ion peak, है ना। ये M plus radical, ये भी M plus M positive radical है ना, radical ion। तो दोनों का भी है तो यहाँ पर सेम है ना। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंज प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक करना है। ये बॉन्ड अगर ब्रेक करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन आपका चला जाएगा इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरफ से, तो आपका पॉजिटिव चार्ज, तो यू विल गेट दिस रीअरेंज प्रोडक्ट। सो रिंग क्लीवेज इज टेकिंग प्लेस, रिंग क्लीवेज यहाँ पर होगा। तो रिंग अगर क्लीवेज होगा तो उसकी वजह से आपका जो है, तो वहां पर क्या हो गया, इसका भी जो मॉलिक्यूल अगर कैलकुलेट करेंगे आप, इसका भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द सेम M by Z. It is equal to, here also M by Z, it is equal to the same molecular ion peak, because there is no loss of any atom. Now second point is that once it is formed, then it will eliminate carbon monoxide. It will eliminate carbon monoxide. Minus CO is lost. So there will be formation of this cyclopentadienyl cation. Cyclopentadienyl cation is formed after loss of, so you will be getting a peak of this cyclopentadienyl cation at 65. You are getting a peak at 65. So you are getting a peak at 65. सो 65 के ऊपर आपको एक पीक मिलेगा, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहले क्या क्या करना है, इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेट करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो एलिमिनेट करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एलिमिनेट करने के बाद में मोनोऑक्साइड को यहाँ पर एलिमिनेट करने के बाद में पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना है,
कार्बन मोनोऑक्साइड को एलिमिनेट करना है, CO ग्रुप एलिमिनेट करना है, -28 होगा ये आपका, -28। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन रेडिकल एलिमिनेट करना है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन टू फॉर्म विच विल बी अपीयरिंग एट 65। 65 के ऊपर ये आपको पीक मिलेगा, तो ये 65 पे आपको पीक मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या क्या है आपका, ये ध्यान में रखनी है। चलिए आपका है फेनॉल। फेनॉल के अंदर आपको क्या क्या करना है, देखिए आपने है तो पहले मॉलिक्यूलर वेट है उसका 94, सो यू आर गेटिंग ए पीक एट 94। 94 में से आपने क्या किए, इसमें से तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकाले पहले। कार्बन मोनोऑक्साइड का हो गया आपका 28, सो 94 minus 28, so it comes out to be 6 and here 66, so you are getting a peak at 66. Then it loses hydrogen radical minus H radical and it is converted into cyclopentadienyl cation. It will appear at 65, so you are getting here, so you are getting a peak at 66 as well as 65. Okay, so it is for carbon monoxide elimination loss, and here it is elimination of carbon monoxide followed by hydrogen radical. So overall there is carbon monoxide and hydrogen, so overall there will be elimination of minus HC triple bond O, so you are getting a peak. Now here in this compound, in this aromatic ring is there, तो एक बात यहाँ पर याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, CH2 group is there, CH2 group, here it is a CH2 group. So CH2 group रहा तो आपको क्या ऑप्शन याद रखना है, it should be forming here propylium ion, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो गया, यहाँ पर आपको और एक चीज याद रखनी है, वो है आपको पहले है तो आपको ये बॉन्ड भी ब्रेक करना है, ये बॉन्ड अल्फा बीटा के बीच में का, ठीक है। तो यहाँ पर है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है नेक्स्ट टू हेटेरो एटम। सो यहाँ पर आपको ये करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्पेसिस बन जाएंगे, ठीक है। इसका आपको 77 के ऊपर मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास हाइड्रोजन शिफ्ट करके ऑर्थो के ऊपर शिफ्ट करना है, तो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, थर्ड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट है ना, हाइड्रोजन इज रीअरेंज्ड और माइग्रेट, यू विल कॉल एज माइग्रेट, है ना, तो ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। सो इन दिस कंडीशन, इन these conditions there will be formation। अब यहाँ पे देखिए दो चीजों का कॉम्बिनेशन आ गया है, अल्कोहल का भी आ गया, OH is not directly attached to aromatic ring, then its cleavage is taking place according to the alcohol, अल्कोहल है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो रिंग एक्सपांशन भी होता है, ट्रोपिलोल भी बनेगा यहाँ पर, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया। तो क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है इसके अंदर, एक तो है तो ट्रोपोलियम आयन टाइप का जो मैकेनिज्म है वो आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। दूसरा और एक पॉइंट आपको क्या याद रखना है, आपको एक पॉइंट यहाँ पर ये रखना है कि आपको जो है यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर है तो रिंग एक्सपांड होके ये 7 मेंबर रिंग बनाएंगी, ट्रोपिलोल बोलेंगे इसको, ठीक है। एक ये हो गया बाय द लॉस ऑफ 1 हाइड्रोजन रेडिकल, ये एक आपको बन गया यहाँ पर। फिर उसके बाद में है तो आपको है तो इस तरह से तो ये बन गया, तो ये तो ये इस तरह से जो है आपके अलग अलग बेंजील अल्कोहल का इस तरह से फ्रैगमेंटेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखिए बेंजील, देखिए ये ट्रोपोलियम आयन का है 91 के ऊपर, ठीक है। ये ट्रोपिलियम का है आपका 107 के ऊपर, आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, 107 के ऊपर। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट इसके ऊपर आपको है तो बाकी के जो है वो याद रखना है कि किस तरह से ये फ्रैगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, कोई डिफिकल्टी है तो अपन उसको बाद में और सॉल्व करेंगे। कोई